Hello everyone, welcome to my channel Let's Solve UPSC. I am really very sorry for the delay in the videos. I know it's been more than a month that I haven't posted any videos, but we'll talk about the reasons in the end of the video. Let's just focus on the topic first. And as a token of gratitude for your patience and support to me, there is a small token of gratitude from my side at the end of this video. So we'll talk about all this at the end. Now, in this video, I am going to discuss about the PYQ analysis. What is PYQ analysis? है क्या PYQ analysis? कैसे करते हैं? टॉपर्स कुछ टॉपर्स इसके बारे में बात करते हैं, कुछ नहीं करते हैं. हर कोई बस बोलता है कि PYQs आर द बेस्ट गाइड यू कैन गेट. PYQs जो है आपकी प्रिपरेशन को हेल्प कर सकते हैं. हर कोई बस यही बोलता है, बट नो वन एग्जैक्टली टेल्स कि PYQ एनालिसिस करना कैसे. नाउ सबसे पहले तो क्वेश्चंस क्या है PYQs के बारे में नॉर्मली जो एस्पिरेंट्स के माइंड में आते हैं. Why are PYQs important and how can they guide our preparation? And why doesn't anyone talk about it in detail? People talk about it. हर कोई बात कर रहा है. Everyone talks about it. PYQ analysis, PYQ mind maps, etc., etc. Everyone talks about it. Except the coaching classes, obviously, because they do not want you to know all this. How can they guide our preparation and why are they important? No. लेट्स लुक एट इट फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स. एक जो एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव, द पर्सन हु इज सेटिंग योर पेपर, क्वेश्चन पेपर, एंड द सेकंड पर्सपेक्टिव इज फ्रॉम आवर साइड, द एस्पिरेंट्स साइड से देखते हैं. नाउ फ्रॉम द एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव, सी द एग्जामिनर इज लेजी. ओके, I will literally explain to you all these points आगे जाके why I am telling you that the examiner is lazy or the examiner is scared. The examiner trusts his colleagues, and also there are some political reasons why the previous year questions are important. I'll tell you each and every one in detail. But let us look at the second perspective first. हमारे साइड से, एस्पिरेंट्स के साइड से क्या हमको बेनिफिट है इसका? एक ही सिंगल बेनिफिट है, दैट देयर आर रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस. नॉट क्वेश्चंस डायरेक्टली बट थीम्स, ऑप्शंस रिपीट होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे. नाउ सी दिस क्वेश्चन इन 1997 अबाउट द रिवर्स कोसी, गोमती, घाघरा एंड गंडक. Same exact question in 2024 with reference to the Himalayan rivers joining the Ganga downstream of Prayagraj from west to east sequence में arrange करना था इनको. The answer is B. गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी. अगर ये वाला क्वेश्चन 1997 का देखा होता तो ऑब्वियसली ये मैप हमको याद हो जाता. नाउ नंबर 2, 2022 में there was a question on Sangam literature in the ancient South India. Now the answer to this is actually sorry, the answer to this is actually, I guess it is B, but look at this statement. Sangam poems have no references to warrior ethics, right? Sangam poems have no references to warrior ethics. Now if you would have searched it, warrior ethics in Sangam age, on Google, then you would have came across this word, Vattakirutal. Vattakirutal is a king defeated in a battle committing ritual suicide by starving himself to death. अगर आपने ये संगम लिटरेचर के टाइम पे वॉरियर एथिक्स को सर्च किया होता गूगल में, थोड़ा सा रिसर्च आपने किया होता, तो यू वुड हैव श्योरली आपको ये वट्टाकिरुटल वर्ड मिल जाता. नाउ नंबर 3, 2023 में क्वेश्चन आया ऑन चैड, गिनी, माली एंड सूडान. इसका आंसर क्या था? इसका आंसर वाज डी, है ना. देयर आर सक्सेसफुल कूज, है ना, राइट. इट इज नॉट अ कूप, इट इज अ कू. ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन कू होता है. नाउ इन 2024 अब देखो क्या पूछा उन्होंने 2024 में अबाउट द साहेल रीजन. aren't these 4 countries पार्ट ऑफ द साहेल रीजन? क्या ये 4 कंट्रीज साहेल रीजन का पार्ट नहीं है? क्या यहाँ पे मिलिट्री टेकओवर्स और कूज नहीं हुए? तो अगर हमने ये क्वेश्चन को थोड़ा सा रिसर्च किया होता तो वी कुड हैव श्योरली डन दिस द 2024 क्वेश्चन. नाउ
नेक्स्ट वन, 1989 में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स आर एक्यूरेटली मेजर्ड बाय. इसका आंसर तो एटॉमिक क्लॉक्स है, बट लुक एट दिस, पल्सर्स, वाइट डवार्फ्स, राइट. 2023 में क्या पूछा है? पल्सर्स के बारे में पूछा है. अगर हमने इस क्वेश्चन से सिर्फ पल्सर्स की डेफिनेशन ही देख ली होती तो हमको पता होता दैट दिस वन वाज द राइट ऑप्शन. नाउ इन 2024 क्या पूछा है? अबाउट ड्वार्फ स्टार्स. सो व्हाइट ड्वार्फ्स को अगर थोड़ा सा भी पढ़ लिया होता देन वी वुड हैव नोन दैट ऑब्वियसली जायंट स्टार्स कैन नॉट लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स. व्हाई? बिकॉज as compared to the dwarf stars, giant stars have a greater rate of nuclear reactions. So the hydrogen in their core, it runs out very much sooner as compared to a dwarf star. Now, next one. 2018 में right to privacy, answer was C. 2021 में right to privacy, answer was C. 2024 में right to privacy, answer was C. C. Next. 2010 क्वेश्चन क्या था? ऑन कोलेरू लेक, कृष्णा रिवर, राइट. करेक्टली मैच करना था द डैम विद द डैम और लेक विद द रिवर, मैच करना था. नॉट करेक्टली जो है उसको सेलेक्ट करना था. यहाँ पे कोलेरू लेक एंड कृष्णा रिवर. 2014 में कोलेरू लेक एट द कन्फ्लुएंस ऑफ मूसी एंड कृष्णा रिवर. 2018 में अबाउट कोलेरू लेक इन आंध्र प्रदेश. 2023 में कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक. जब यूपीएससी ने ऑलरेडी 3 बार ये बोल चुका है कि उसको कोलेरू लेक में इंटरेस्ट है, तो हम कोलेरू लेक को क्यों नहीं पढ़ेंगे? अगर हम कोलेरू लेक को पढ़ लेते 2023 पेपर के पहले, देन वी वुड हैव नोन इस क्वेश्चन का आंसर. नाउ नेक्स्ट, इन 2010 क्वेश्चन अबाउट हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोड्यूसेस वन ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जॉस्ट. The answer to this is C, water. H2O जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल से एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है. Now 2015 with reference to fuel cells in which hydrogen rich fuel and oxygen are used to generate electricity. See the first statement, it emits heat and water as byproducts. हमने क्योंकि ये पढ़ा तो हमको यहाँ का आंसर मिल गया. एंड जब हमने ऑलरेडी देख लिया कि एक बार 2010 में एंड एक बार 2015 में जो है यूपीएससी ने ऑलरेडी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, देन इफ वी वुड हैव स्टडीड हाइड्रोजन फ्यूल सेल फॉर अ लिटिल बिट, तो हमको 2023 में इट वुड हैव बीन वेरी इजी टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट वन, इन 2021 क्वेश्चन था ऑन बिस्फेनॉल ए. इसका आंसर ऑल्दो आई गेस इट इज बी, बट लुक एट दिस, पॉलीइथिलीन टेराफ्थलेट. अगर हमने ये पॉलीइथिलीन टेराफ्थलेट को यहां से सर्च कर लिया होता एंड इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया होता, देन वी कुड हैव इजीली अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन. वी कुड हैव इजीली अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन. नाउ अब देखते हैं एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं. सी, सबसे पहला मैंने क्या बोला था? द एग्जामिनर इज स्केयर्ड. व्हाई? आप ये सोचो कि आप खुद ही एग्जामिनर हो एंड नाउ आपको यूपीएससी से कॉल आता है एंड यू हैव टू गो टू दिल्ली, यू हैव टू सेट द क्वेश्चन पेपर. बट आपको तो क्वेश्चन पेपर बनाना ऐसा आता है नहीं. क्यों? क्योंकि आपके पास में कोई एक सेट पैटर्न है नहीं, राइट. आपके पास में कोई सेट पैटर्न है नहीं. यू डू नॉट हैव अ सेट टेम्पलेट टू सेट अ क्वेश्चन पेपर कि हाँ, मुझे इकोनॉमी का क्वेश्चन अगर सेट करना है तो ऐसे ही करना है, मुझे अगर साइंस का क्वेश्चन करना है तो ऐसे ही करना है. You do not have that. So what will you do? You will find that something trustworthy. You will find something trustworthy. क्योंकि आप ऐसा सोचो, अगर एग्जामिनर ने एक भी वर्ड या एक भी सेंटेंस किसी क्वेश्चन में गलत लिख दिया तो यूपीएससी विल बी लायबल टू गो इन कोर्ट. यूपीएससी को कोई भी कोर्ट में लेके जा सकता है, राइट. सो ही विल फाइंड समथिंग ट्रस्टवर्दी, जहां पे वो कल को उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए कि उसकी गलती की वजह से यूपीएससी को कोर्ट जाना पड़ा. तो अगर आप ट्रस्टवर्दी चीजें ढूंढोगे तो है क्या ट्रस्टवर्दी? गवर्नमेंट वेबसाइट्स, एनसीईआरटीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ऑलरेडी बन चुके हैं, ये ऑलरेडी अपडेट होते रहते हैं. यही है ना ट्रस्टवर्दी, इससे ज्यादा और क्या है? नाउ नंबर 2, द एग्जामिनर इज लेजी. सी,
आप भी इस चीज को मानोगे कि अगर मैं आपको कोई टास्क दूं और मैं आपको ये बोलूं कि आपको 10 क्वेश्चंस बनाने, आपको 10 क्वेश्चंस के इतने पैसे मिल जाएंगे, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल गेट इन योर माइंड इज कि यार जल्दी जल्दी करते हैं, पैसे लेते हैं, घर जाते हैं। ठीक है, कभी भी एग्जामिनर ये नहीं सोच रहा होगा कि आई विल मेक सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि इंडिया को सबसे बेस्ट आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर निकल के आएगा इस क्वेश्चन की वजह से। नो वन वुड थिंक दैट, राइट? सो एग्जामिनर इज लेजी, ही जस्ट वांट्स टू फिनिश द टास्क एट द अर्लीस्ट, and when you want to finish the task at the earliest, the best option is to copy others, right? And the best option is to copy others. See, यहाँ पे क्या हुआ 2019 में क्या क्वेश्चन आया? The money multiplier in an economy increases with which one of the following? See the options: increase in cash reserve ratio, increase in banking habit of population, increase in statutory liquidity ratio, or increase in population of the country. सेम अब अगर हम 2021 में देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? यार क्वेश्चन का एक वर्ड भी चेंज नहीं हुआ है, क्वेश्चन का एक लाइन भी चेंज नहीं हुआ है, एग्जैक्ट सेम टेम्पलेट, एग्जैक्ट सारी चीजें सेम, ऑप्शन से लेके सब कुछ सेम है, बस सिर्फ यहाँ पे जो है ऑप्शंस थोड़े से ऊपर नीचे कर दिए। आई गेस यस, यहाँ पे बी और सी को जो है इंटरचेंज यहाँ पे कर दिया गया, दैट्स इट। बाकी एग्जैक्टली सेम टू सेम पूरा का पूरा डिट्टो कॉपी कर दिया एग्जामिनर ने, राइट? नाउ नेक्स्ट, अब देखो बात यह है कि देयर इज ऑलवेज सम पॉलिटिकल रीजंस आल्सो। सी आई नो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा बोलना, बट द पॉइंट इज कि जो रूलिंग पार्टी होती है ना, वो मोस्टली ये चीजें मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि करती हैं, एंड आई डू नॉट वॉन्ट यू टू गेट अ माइंडसेट ऑल्सो कि हाँ रूलिंग पार्टी ऐसा कर रही है या ऑपोजिशन पार्टी ऐसा कर रही है, मुझे ये सब में नहीं जाना। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ क्लियर व्यू कि एग्जाम में पेपर में आ क्या रहा है, आपका प्रीलिम्स कैसे निकलेगा, राइट? सो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ क्लियर व्यू। नाउ अगर आप, ये क्वेश्चन है 2021 का, ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, इसका आंसर तो एक्चुअली लेमन ग्रास है, इसका आंसर है लेमन ग्रास विच इज अ नेचुरल मस्किटो रेपेलेंट। बट अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में ढूंढोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप नट ग्रास, एलिफेंट ग्रास और कांग्रेस ग्रास तीनों ऑप्शंस को पढ़ोगे। तो जब आप कांग्रेस ग्रास सर्च करोगे ना, देन यू विल गेट टू नो दैट कांग्रेस ग्रास इज, it is an invasive weed that entered India during the PL 480 scheme. PL 480 scheme क्या है? PL 480 scheme was when we were importing wheat from USA because हमारे पास में उस टाइम पे इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं थी, हमारे पास में उस टाइम पे वीट की इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं थी, सो वी वर इम्पोर्टिंग वीट फ्रॉम यूएसए। तो उसके साथ में कांग्रेस ग्रास जो है एक इन्वेजिव वीट आ गई थी। उस इन्वेजिव वीट का नाम एक्चुअली इट वाज नॉट कांग्रेस ग्रास, बट ऑपोजिशन पार्टी ने या मीडिया हाउसेस ने न्यूज में उस टाइम पे उसको कांग्रेस ग्रास के नाम से बहुत फेमस कर दिया इस वीट को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सो चलो अब तक तो हमको ये समझ में आ गया है कि पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, क्यों है हमको ये समझ में आ गया, बट उसको यूज कैसे करना है, और आई गेस आपको ये भी समझ में आ गया होगा अभी तक कि कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहता। क्योंकि पॉइंट ये है ना कि टॉपर्स यूजुअली दे वर्क हार्ड, दे फाइंड सच थिंग्स, बट यार देखो बात ये है कि अब जब आपने कोई चीज को खुद मेहनत करके ढूंढा, जब आपने किसी चीज को खुद समझा, तो यार ऑब्वियसली अब आप, बहुत लोग ये नहीं चाहते हैं कि उसको बस सिर्फ बता दे सबको जाके ऐसे ही फ्री में, बट कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे भी जो कि बता देते हैं। आई होप आई एम टेलिंग यू द राइट थिंग एंड इट हेल्प्स यू। सो हाउ टू यूज दीज टू इंक्रीज आवर चांसेस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स यूजिंग दिस टेक्निक, जैसा कि शायद आपने थंबनेल में देखा होगा। I scored around what I guess 64. Yes, I scored 64 in the prelims of 2022, and this was 20 marks below the cutoff, right? But in 2023, I scored 94, and this was 20 marks above the cutoff. This was 20 marks above the cutoff.
तो मैं यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा हूँ, यहाँ से यहाँ मैं पहुंचा हूँ इसी पीवाईक्यू एनालिसिस को करते करते। इसी पीवाईक्यू एनालिसिस को करते करते यूपीएससी का थॉट प्रोसेस समझा मैंने, यूपीएससी को कौन सी थीम्स पसंद है उनको समझा मैंने, यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है उसको समझा मैंने, एंड देन इट हेल्प मी स्कोर। आई नो आप शायद बोल सकते हैं कि 94 इज नॉट सच अ ग्रेट स्कोर, बट द पॉइंट इज यार कि आई थिंक वेदर इन 2023 द कट ऑफ वाज 74. So even if someone is getting 74.01, then that is a great score for me, because he has to just clear prelims. He does not have to top the prelims. Okay, he just have to clear the prelims. Now, how to use them? See, I'll demonstrate it live to you कि कैसे मैं कैसे यूज करता हूँ previous year questions को. Now, in 2023 there was a question on Congo Basin. ठीक है, अब मैंने ये देखा कि 2023 में कॉन्गो बेसिन पे क्वेश्चन आया है। सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा गूगल पे, गूगल पे जाके आई विल जस्ट सर्च, वेट 1 सेकेंड, आई विल जस्ट सर्च कॉन्गो बेसिन। अब मैं इसमें कॉन्गो बेसिन में जाके फर्स्ट आई विल ट्राई टू फाइंड सम गवर्नमेंट वेबसाइट और यूएन की वेबसाइट जहां पे इंफॉर्मेशन मुझे पता है कि वहां ट्रू मिलेगी। जैसे सी दिस वन, यूएनईपी का कॉन्गो बेसिन वाला। नाउ जस्ट 1 सेकेंड, ओके सी, अब देखो थर्ड पैराग्राफ में पढ़ना प्लीज। द कॉन्गो बेसिन इज होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड्स। One of the following regions has the world's largest tropical peatlands. The peat swamp of the Congo Basin stores this amount of carbon, approximately equivalent to 3 years worth of global greenhouse gas emissions, which holds about 3 years worth of global carbon emissions. So this is how you analyze PYQs. अब मैं क्या करूंगा इस साल, अब मैं जो है इस साल अमेजोन बेसिन भी ऐसे ही सर्च करूंगा, किकोरी भी ऐसे ही सर्च करूंगा, एंड दिस रियो डेला प्लाटा बेसिन भी मैं ऐसे ही सर्च करूंगा। सी दिस इज हाउ यू कैन डू पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए आपको कोई एक सिंगल सोर्स नहीं मिलेगा, आपको कभी नहीं मिलेगा। यू विल हैव टू डू इट ऑन योर ओन। कोई आपको करके नहीं दे सकता है, आई एम टेलिंग यू, कोई आपके लिए इतना काम करके नहीं दे सकता है, मैं भी नहीं दे सकता हूं, बट यू कैन डू इट फॉर योर सेल्फ। अभी भी टाइम है, यू कैन डू इट फॉर योर सेल्फ। ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो पीवाईक्यू एनालिसिस करने की, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो रिवाइज करने की, इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड मैराथन सेशंस, मॉक टेस्ट, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, राइट? सो नाउ नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इन 2021 दिस क्वेश्चन बिस्फिनॉल ए, जो कि ऑलरेडी हमने देखा था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसमें ये पता है कि आंसर तो पॉलीकार्बोनेट है, बट नाउ आई विल सर्च पॉलीइथिलीन टेराफ्थलेट। Okay, now I'll search polyethylene terephthalate on Google. Polyethylene, 1 second, yeah, this one, polyethylene terephthalate. Now I'll tell you one very simple thing. आप कभी भी किसी कोचिंग की वेबसाइट खोल के मत पढ़ना, किसी कोचिंग की वेबसाइट से इंफॉर्मेशन मत लेना। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जो है वो कोचिंग की वेबसाइट से नहीं ले रहा है। मैंने क्या बोला था, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, या तो वो इंडिया गवर्नमेंट की वेबसाइट होनी चाहिए, या तो वो यूएन की वेबसाइट होनी चाहिए, या तो वो विकिपीडिया हो सकता है, ठीक है। क्या क्या चीजें हो गई? इट कैन बी ईदर, 1 सेकेंड, आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर, इट कैन बी ईदर विकिपीडिया, गवर्नमेंट वेबसाइट्स और यूएन वेबसाइट, ठीक है। सिर्फ इन्हीं से जो है आपको डेटा अपना कलेक्ट करना है। नाउ लेट्स सी पॉलीइथिलीन टेराफ्थलेट में है क्या कुछ यहाँ पे। एज सच गवर्नमेंट का तो कुछ है नहीं, वाजीराम एंड रवि, ठीक है, नहीं ये सब नहीं करना है। नो, विकिपीडिया पे आते हैं, लेट्स सी क्या लिखा है। ओके, पॉलीइथिलीन टेराफ्थलेट और पेट, राइट, इट इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। पॉलीमर लिखा है, इसका मतलब है आई नो दैट इट इज प्लास्टिक। पॉलीमर लिखा है, आई नो दैट इट इज प्लास्टिक। तो मुझे अब ये सीधा सीधा पता है कि इसमें जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये तो गलत हो गया। ऑब्वियसली यार, यू कांट बर्न प्लास्टिक एंड डू नॉट कॉज एनी एमिशन। तो ये दो ऑप्शंस तो मेरे ऐसे एलिमिनेट हो गए, एंड थर्ड वाला स्टेटमेंट मेरा सही है। नाउ नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट लाइन में यहां पर लिखा हुआ है, सी is used in fibers for clothing, containers for liquids and food. So I know now what is a PET.
व्हाट इज पॉलीइथिलीन टेराफ्थलेट, अब मुझे पता है तो इसका मुझे फर्स्ट है एंड आई नो दैट द आंसर इज ए। सिर्फ इतना सा ही काम करना है आपको, बस एक आइडिया लेना है उन चीजों का। सो नाउ दिस ईयर व्हाट आई विल डू, लाइक आई हैव ऑलरेडी डन दिस, आई विल आल्सो सी पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, जो पीवीसी आता है ना, पीवीसी के पाइप्स आते हैं घर में आपके, पॉलीविनाइल क्लोराइड, आई विल सी ऑल दिस आल्सो, आई विल सी व्हाट इज लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, राइट। सो दिस इज हाउ यू डू पीवाईक्यू एनालिसिस। ये होता है पीवाईक्यू एनालिसिस करने का तरीका, जिसमें आप विकिपीडिया, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, यूएन वेबसाइट्स को आप ढूंढ सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो 2023 वाला। लोगों ने क्या बोला था इस क्वेश्चन को कि यार ये तो करंट अफेयर से आया, ये तो है ना, इट इज वेरी इजी फॉर द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टू से दैट ये चीजें करंट अफेयर से आई है, या ये चीजें हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन में कवर थी, ये चीजें न्यूज़पेपर में थी, हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस करवाई थी, वहां से आपको देखना चाहिए था। इट इज वेरी इजी फॉर देम टू से, बट सी, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, लेट्स सी, Switzerland has the largest gold reserves in the world. Does it have the largest gold reserves in the world? Look at this here. Switzerland has no known mineral deposit in it. आज ही जाना, अभी जाना इस वीडियो को देखने के बाद, क्लास 8 ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में पेज नंबर 25 चैप्टर 3, पेज नंबर 25 चैप्टर 3, वेट सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट द चैप्टर 3 ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में पेज नंबर 25, जस्ट गो एंड सी दिस। यहां आपको आंसर मिल गया आपका, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द आंसर इज व्हाट, सी। ओके, समझ में आया? दिस इज हाउ यू डू पीवाईक्यू एनालिसिस, दिस इज हाउ यू स्टडी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। ये होता है तरीका। तो इससे अब आपको क्या हुआ, अब आपको ये पता चला कि हाँ एनसीईआरटी में जो ये बॉक्सेस दिए हुए ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता चला कि हाँ जो क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं, अगर उनमें मैं एक ऑप्शन सही है और बाकी 3 ऑप्शंस है, अगर मैं उन 3 ऑप्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा सा भी पढ़ लूंगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू डू दैट। जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा था, कॉन्गो बेसिन में भी ज्यादा टाइम नहीं लगा। सी, कॉन्गो बेसिन के बारे में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कॉन्गो बेसिन की पूरी हिस्ट्री आनी चाहिए। कितना टाइम लगा? इट हार्डली टुक अस लाइक व्हाट 2 मिनट्स और 3 मिनट्स और आई गेस 5 मिनट्स, जिसमें 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। So this is how you do PYQ analysis, and this is how I want you to do because this is how I do, and this will, I am very sure that this will help you a lot in clearing your prelims. So now the reason for the delay in videos, actually I was having multiple health problems since the past 40 days. I was getting, like, I was having a very high fever, I was not well, आई हैड अ वेरी माइनर सर्जरी, जिसमें मुझे एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए था। तो जो 2-3 दिन में ठीक होने वाला था, मैं इन्फेक्शन होने के कारण मुझे ठीक होने में 10 से 11 दिन लग गए मुझे। सो आई वॉज हैविंग मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड सिंस द लास्ट 40 डेज, अगर आपने देखा होगा चैनल पे, तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया मैं। आई एम रियली रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, एंड आई एम ऑल्सो थैंक यू to everyone. I am literally very very thankful to everyone because even though when I was not uploading any video, I still did not lose any of my subscribers. ना ही Telegram channel से and ना ही YouTube से I did not lose any of my subscribers. They are still intact. People are still reaching out to me through the comment section on my videos, and I'm very thankful for you all, for your patience, for your support, for your love for this channel. And for this, as a small token of gratitude, I will upload a PDF of the last 30 years, I guess 29 years of previous year questions, which are sorted topic wise, subject wise, along with the answer keys, along with in which year they came, on my Telegram channel, the link to which will be in the description box of this video. And once again, I'm very sorry for the delay, and I'm very thank you for all of you who have stayed by my side. Now, thank you, all the best. Let's solve UPSC. Have a great day. We'll meet you soon. Thank you.